हेलो दोस्तों, हाय। मेरा नाम है अभिषेक। आप हैं मेरे साथ लॉस्ट एंड फाउंड पे। वेलकम। एंड टुडे इज़ 1 जनवरी, सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज हम निकले हैं श्रीलंका के लिए, एंड वी विल बी कवरिंग योर 7 to 10 days ऑफ आइटनरी। क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द आइडियल बजट, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू गो, एंड अ लॉट मोर थिंग्स। सो स्टे ट्यून्ड। तो हम पहुंच गए थे श्रीलंका यही कोई 12:30 बजे एंड हमने लिया अपना सिम एंड वी डायरेक्टली वेंट ऑफ टू गॉल विच इज़ एन एंशियंट टाउन एंड वाज फोर्टिफाइड इन 16th सेंचुरी बाय पोर्टुगीज। हम लोगों ने यहाँ पहुँच के अपना सामान रखा होटल में एंड वी डायरेक्टली headed off to Gaul Fort Market, which has a beautiful blend of Portuguese and South Asian style of buildings and architecture. यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा shops of gems, clothing and beautiful cafes which will serve you with the authentic Sri Lankan food as well as European food. तो यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना ही चाहिए। उसके बाद हम लोग चले गए गॉल हार्बर देखने के लिए एंड बाय द इवनिंग वी केम बैक टू ओल्ड फोर्ट मार्केट विच वाज लिट एंड इट वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। हमने वहाँ पे लाइट हाउस भी देखा एंड इट कैन बी विटनेस्ड फ्रॉम एनी कॉर्नर इन वाइल स्ट्रोलिंग इन गॉल एंड देन वी एंडेड आवर इवनिंग with a beautiful musical experience. Even when the night changes, it will never change me and you. Sing a bit loudly. I am recording. Hello, nice. Unawatuna is a very colorful, vibrant beach town and has a very cozy and a laid-back vibe to the city. While walking down the streets of Unawatuna, you can feel the charm of the beautiful beach town. While walking, you will also witness a lot of seafood outlets, which surely appears to be very appetizing. To be honest, Unawatuna was one of our favorite places in the south of Sri Lanka. क्यों ये वीडियो में आपको आगे जाके पता चलेगा. So once we reached Unawatuna, we headed to our homestay, and you can easily find hotel or homestay ranging from INR 1500 to 3500 in the peak season. Along the beach side, there are a lot of cafes and shacks where you can just relax for a while and enjoy the cool ocean breeze. So the first place we went to in Unawatuna was the Thalpe Natural Pool Beach. It is a beautiful beach which is around 7 to 8 kilometers from the city. If you are somebody like me जिसको swimming भी करनी है but open sea में डर भी लगता है, so this is an ideal place for you. It is so beautifully and naturally constructed कि हर किसी के पास अपना खुद का एक private pool होता है. It gives you a feeling of an infinity pool, a private pool. So it was definitely my favorite place in Sri Lanka. So it's an archaeological formation formed by the ocean and coral reefs. The water here is very clean. You can see the ground below, and you will also find pools in various shapes and sizes where you can go and play with the waves. You will also find small fishes in the pools which will give you a natural massage. इसके बाद हम पहुँचे पीस पगोड़ा में which has a very different and a very unique concept to it.
ये इसके बाद हम गए द लोकल ऊना वतूना थोड़ा पेट पूजा करने, जहाँ हमने पहली बार द फेमस श्रीलंकन राइस एंड करी ट्राई किया. It is one of the most affordable places in Una Vatuna, very authentic, and you should definitely give it a shot. फिर शुरू हुई हमारी हाइक टू द जंगल बीच. ये है जंगल बीच. ये पीछे आप देख रहे हैं खुला समुंदर. अराउंड 1 किलोमीटर का हाइक था ओवरऑल. एंड पीछे and आगे भी दोनों तरफ आपका घनी पहाड़ियाँ हैं. एंड एक छोटा सा 2 कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे जंगल बीच में. बहुत खूबसूरत हाइक है. पानी का कलर अभी थोड़ा सूरज की रोशनी नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हैं काफ़ी मुझे क्लियर पानी यहाँ पे दिख रहा है. Hi, so today is day 3 in Sri Lanka. अभी हम लोग हैं, we are staying at वेलेगामा, जहाँ से आप एहेंगामा, वेलेगामा और मिरिसा के सारे स्पॉट्स, बीचेस, सारी एक्टिविटीज़ कवर्स कर सकते हो. इट्स वेरी नियर बाय, ऐसे 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही सब कुछ हो जाएगा. एहेंगामा इज़ ग्रेट फॉर बीचेस, बहुत ही खूबसूरत बीच है वहाँ पे. वेलेगामा इज़ फॉर सर्फिंग एंड मिरिसा में स्नॉर्कलिंग है, वेल वॉचिंग है. एंड ये कोकोनट हिल ट्री टॉप है जहाँ पे हम लोग अभी हैं. 1-2 टेम्पल्स एंड लेक्स भी हैं जो कि बहुत सारे हाँ छोटे मोटे स्पॉट्स हैं जो कवर किए जा सकते हैं. इजीली 2 डेज तो आराम से यहाँ पे आप रुक सकते हो. बट ये प्लेस इज़ वेरी नाइस. ऑल्सो वेरी वायरल एंड इंस्टाग्रामेबल. देखिए टर्टल बीच है, मरीसा बीच है, बीच है हमारे.
फूड सीन श्रीलंका में ओवरऑल मेरा अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही है कि बहुत एक्सपेंसिव है और हर जगह ही एक्सपेंसिव रहेगा, बट if it's worth the money then it's good. In some of the places that we went it was expensive and not even good, not even fresh. तो कहीं पे भी अगर आप किसी भी कैफ़े या रेस्टोरेंट में जा रहे हो प्लीज़ 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 गूगल रिव्यूज़ चेक करना, यूट्यूब पे थोड़ा रिसर्च कर लेना, कुछ काफ़ी अच्छे फूड रिकमेंडेशंस आपको मिल जाएंगे। तो बेस्ड ऑन जो हमने एक्सप्लोर किया है वेलेगामा में अगर मैं बोलूँ तो ये डल नेथा वॉज रियली रियली गुड, वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव और लोकल क्विजीन भी मिलेगा आपको और थोड़ा बहुत आपका पिज़्ज़ा बर्गर टाइप से मिल जाएगा। देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड हॉपर, इट्स एन इक्विवेलेंट ऑफ उत्तपम टाइप्स होता है, डोसे के बैटर का ही होता है, राइस फ्लावर से ही बनता है एंड अंदर में दे ईदर पुट एग और चिकन और समटाइम्स टू मेक इट स्वीट दे ऑल्सो पुट सम नटेला एंड हनी बनाना। तो हॉपर्स आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इंडियन हमारा जो क्विजीन है उसके हिसाब से हमारा जो टेस्ट वर्ड है उसके लिए वो बहुत फ्रेंडली है। सो वन इज़ डल नेथा, वहाँ पे आप लोकल क्विजीन डेफिनेटली ट्राई आउट करना। रिकमेंडेशन मिरिसा में बीच के पास ही करी गेदारा है, थोड़ा सा मेन रोड पे नहीं है, थोड़ा सा अंदर जाके है, बट बहुत ही अमेजिंग खाना था। वहाँ पे भी एकदम ऑथेंटिक बुफे ऑप्शंस भी था और अला कार्ट भी था, हमने दोनों थोड़ा थोड़ा ट्राई किया एंड दैट वाज रियली यम, अगेन वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एज पर श्रीलंकन स्टैंडर्ड्स। तो ये दो रिकमेंडेशंस हैं एंड ऑफ कोर्स जहाँ पे भी जाओ तो थोड़ा गूगल पे रिव्यू चेक करके जाना। So we are almost at the end of our trip to the south part of Sri Lanka. Meanwhile मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँ। एक्टिविटीज़ वेलिगामा बीच पे लाइक आई सेड सर्फिंग है, सर्फिंग के चार्जेस फॉर द बोट अभी पीक सीजन चल रहा है तो हमने जो पे किया वॉज 1010 LKR फॉर द सर्फ बोट एंड अगर आप सेशंस लेना चाहते हो तो यू विल हैव टू एडिशनली पे आई थिंक 5000 LKR। नाउ कमिंग टू मेरिसा में हमने वेल वॉचिंग के लिए हम लोग गए थे, दैट कॉस्टेड अस 9000 LKR पर पर्सन। काफ़ी बार्गेनिंग करवानी पड़ती है उसमें, दे स्टार्टेड विथ $50 पर पर्सन, फिर और बहुत सारे वेंडर्स से बात कर करके वी नैरोड इट डाउन टू 9000 LKR पर पर्सन, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है। आपको अराउंड 6:37 यू हैव टू रिपोर्ट एट द डॉक और डॉकयार्ड और वहाँ से वो लोग लेके जाते हैं आगे। 7 आई थिंक वी स्टार्टेड एट 7 एंड बाई 12:30 और मे बी 11:30-12 हम लोग डॉकयार्ड पे वापस आ गए। अनफॉर्चुनेटली हमको वेल नहीं दिखी और हमारे साथ ऑफ कोर्स जितने भी और बाकी शिप्स गए थे किसी को भी वेल नहीं दिखी, बट वी स्पॉटेड सम रियली नाइस डॉल्फिन्स एंड देयर मूवमेंट्स और थोड़े टर्टल्स भी दिखे। तो वही वो लक वाली बात है, सी इफ़ यू वांट टू टेक दैट चांस। अगर शॉर्ट टाइम का ट्रिप है, आपका छोटा ट्रिप है, मेरे ख्याल से आप उसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि आधा दिन वहाँ निकल जाता है, काफ़ी कॉस्टली होता है वो और ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगेन नेचर है तो उसमें कुछ हम कह नहीं सकते कि वो हमें स्पॉट कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। स्नॉर्कलिंग के लिए अगेन बीचेस पे लोग खुद ही अपना स्नॉर्कलिंग किट लेके आते हैं और शैलो साइड पे वो खुद ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। और टर्टल्स वगैरह, टर्टल बीच पे तो आपको टर्टल शैलो साइड में ही दिख जाएगा। सो इफ़ यू हैव योर स्नॉर्कलिंग किट हैंडी और यू कैन ऑल्सो रेंट इट फ्रॉम दिस प्लेस और आप खुद भी कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप डीप में जाके डेप्थ में जाके करना चाहते हो तो उसका भी आई थिंक 5000 LKR पर पर्सन वो लोग चार्ज कर रहे थे फॉर मे बी 2 hours ऑफ स्नॉर्कलिंग। ये 3 एक्टिविटीज़ थी जो हमने जिनके बारे में एक्सप्लोर किया। सो अगर आप पीक सीज़न पे आओगे तो थोड़ा सा बार्गेनिंग करनी पड़ती है, इधर उधर पता करना पड़ता है एंड या सो साउथ का ट्रिप ऑलमोस्ट एंड होने वाला है एंड इट वाज ग्रेट। आई हैड अ लॉट ऑफ फन, काफ़ी सारी नए एक्सपीरियंसेस थे। आई होप आपको ये पसंद आया हो साउथ साइड का जो भी हमने एक्सप्लोरेशन किया है एंड नॉर्थ साइड के लिए स्टे ट्यून्ड।